In continuation to the previous lecture that we learned about transformers, the basics of transformers. So now we here now present some of the remaining points related to transformer as written here. So one of which was the transformer is electrically isolated, which means that since at the primary side we are going to give power as input, so this power in fact given in the form of voltage and current at the primary side is isolated from the power that is produced at the secondary side. So at the secondary side we get the voltage and current, and in fact these two windings, the primary and secondary side windings, are electrically isolated. So the transfer of power takes place through the medium of magnetic field. So what is happening is that the power at the primary side gets transformed into the power that is produced inside the core. So this power at the primary side gets transmitted into it gets converted into power in the form of magnetic field in the core, and that magnetic field power stored in the magnetic field is again converted back to electrical form through the secondary side. And as discussed before, the transformers are of two types. One is step up and the step down. So this should be step down. So it's a correction, step down. So in case of a step up transformer, what we have is the windings on the secondary side will be larger than the number of windings at the primary side, which means that NS is the windings on the secondary side and NP is the windings at the primary side. So if NS is going to be greater than NP, in that case the transformer is said to be step up transformer. And in case if NS is less than NP, the number of windings at the secondary side is less than the number of windings at the primary side, then such a transformer is called as a step down transformer. And what happens in step down transformer is that the voltage that we get at the secondary side is less than the primary supplied voltage. फिर इसी तरीके से if we talk about the transformer construction, so we are talking about the single phase transformer, and in this part, what so we had been seeing this transformer in the previous lecture as well as here. So we have a transformer that is there exists a core first of all. So this is the core, which is made up of laminated steel. So that the material, whatever material is going to be used for producing the core, is made up of laminations. So you will observe thin sheets of steel which are in fact electrically laminated or electrically isolated from each other. So the in this manner, if when we provide laminations in the core, we in fact are trying to avoid the flow of or conduction of current from one plate or one lamination to other. So, and in fact this lamination is done in order to avoid a loss called as the core loss that usually happens when that usually is very large if laminations are not provided. So the purpose of providing laminations in the transformer core is to reduce the core losses. तो ये लैमिनेशन का पर्पज़ ये होता है, ये इस तरह की आपको जो प्लेट्स नज़र आती हैं, ये प्लेट्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता है. तो इसका मेन पर्पज़ होता है कोर लॉस को रिड्यूस कराना. अगर लैमिनेशंस नहीं होंगी तो कोर लॉस बहुत ज़्यादा होगा. फिर वाइंडिंग्स जो है वो इस साइड में प्राइमरी साइड वाइंडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, फिर सेकेंडरी साइड दूसरी साइड तरफ होती हैं. ये प्राइमरी साइड या प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई. और इनका जो ऑपरेशन मैंने पिछली दफ़े भी बताया था, ये ऑपरेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस से. तो प्राइमरी साइड में जो करंट और वोल्टेज आपने जो पावर सप्लाई दी है वो इवेंचुअली सेकेंडरी साइड में इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट अपीयर होती है, यानी आपने वो पावर सेकेंडरी साइड में ट्रांसमिट कर दी, और ये पावर पहले कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक पावर में. तो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपने प्रोवाइड करी वो कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक फॉर्म में कोर के अंदर में, ये एक पावर आ गई, फिर ये पावर दोबारा ट्रांसमिट हो गई सेकेंडरी साइड में. इसका सिंबल जो है
स्कीमेटिक जो है वो इस तरीके से हम शो करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये प्राइमरी साइड को शो करता है, और ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक कोर है, या कपलिंग भी कहते हैं इसे। तो एक तरह के ये दोनों, यानी ये शो करता है कि इस तरह की दो लाइन, दो ये कॉयल हो गई प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, दोनों के बीच में अगर इस तरह की लाइन है तो हम इसको मैग्नेटिक कपलिंग भी कहते हैं। कोर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में कपलिंग हो रही है, और ये सेकेंडरी साइड की हो गई। और इसी तरीके से जो यानी इलेक्ट्रिकल, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम बनाते हैं तो बार बार इस तरीके से बनाना मुश्किल होता है, तो हम सिंपली ट्रांसफार्मर को इस तरीके से शो कर देते हैं। वीपी का मतलब प्राइमरी वोल्टेज, वीएस का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पावर। तो वीपी इज़ द प्राइमरी वोल्टेज, वी इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, एन पी इज़ द नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स, एन एस इज़ द नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स, फाई इज़ द फ्लक्स लिंकेज है। अच्छा, ये रेफरेंस है जहाँ से ये वाला पार्ट मैंने पिक किया है। फिर इसी तरीके से ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डिवाइड बाई सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी साइड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी साइड। ये बराबर होता है, ये हमने देखा था, वोल्टेज एट द प्राइमरी डिवाइड बाई वोल्टेज एट द सेकेंडरी। तो ये एन जो है ये कहलाता है टर्न्स रेशियो। इसी तरीके से एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रेसिप्रोकल होता है टर्न्स रेशियो का। तो यहाँ पे लिख रखा है 1/टर्न टर्न रेशियो। अब इसकी वर्किंग को अगर समझे, वर्किंग में थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि आप बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये वर्क करता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जो फैराडे ने दिया था लॉ। फिर लेंज ने उसको जो है और फर्दर उसमें नेगेटिव सिंबल लगा के ये बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पैरामीटर दैट कॉजेज इट टू जनरेट। तो अब अगर आपने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वी प्राइमरी साइड में, तो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से करंट फ्लो होगा। अब क्योंकि वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, साइनोसॉइडल होता है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है वो भी साइनोसॉइडल होता है। जब ये करंट कॉइल से पास किया जाता है, साइनोसॉइडल वेरिंग करंट को जब कॉइल से पास करेंगे तो जो फ्लक्स कोर के अंदर प्रोड्यूस होगा वो भी साइनोसॉइडली वेरिंग होगा। तो अगर यानी फाई जो है ये साइनोसॉइडली वेरिंग है, इसलिए यहाँ पे देखिए फाई इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी लिख रखा है, क्योंकि ये जो फ्लक्स आ रहा है ये इस करंट की वजह से आ रहा है, और करंट साइनोसॉइडल वेरिंग है तो फ्लक्स भी साइनोसॉइडल वेरिंग होगा। अगर ये करंट कांस्टेंट होता है जैसे डीसी के केस में होता है, तो डीसी के केस में क्योंकि आप कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 जो भी है, डीसी अप्लाई करने की वजह से करंट कांस्टेंट वैल्यू को फ्लो करता है, उसकी वजह से कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होता है। अब क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स जब जनरेट होगा तो कांस्टेंट फ्लक्स जो है वो इंडक्शन नहीं करा सकता। इंडक्शन कराने के लिए हमें वेरिंग फ्लक्स चाहिए, इसलिए हम साइनोसॉइडल करंट दे के साइनोसॉइडल फ्लक्स प्रोड्यूस कराते हैं। और साइनोसॉइडल फ्लक्स के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी भी कॉइल के पास साइनोसॉइडल फ्लक्स होगा, वेरिंग फ्लक्स होगा, तो उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वोल्टेज इंड्यूस होंगे। तो इसीलिए फिर हम यहाँ सेकेंडरी साइड में कॉइल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो है सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस है। तो अब एक सवाल पहले भी कुछ स्टूडेंट्स करते थे कि साहब जब हम वोल्टेज इंड्यूस ही कराना चाहते हैं सेकेंडरी साइड में, तो हम इस कोर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोर की ज़रूरत क्या है, हम कॉइल को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप कोर यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एयर कोर ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और एयर की परमिएबिलिटी जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनसे काफ़ी कम होती है। तो परमिएबिलिटी कम होने की वजह से फिर आपकी जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो अच्छी नहीं होगी। तो प्रॉपर अच्छी मैग्नेटिक कपलिंग के लिए हम अच्छे यानी जो आपके कोर्स जो गुड मैग्नेटिक कंडक्टर समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक कंडक्टर्स होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत आसानी के साथ अलाउ कर दें, इसलिए हाई परमिएबिलिटी मटेरियल कहते हैं मैंने। तो हाई परमिएबिलिटी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं एज कोर दैट अलाउज द फ्लक्स लाइंस टू ईजिली इस्टेब्लिश अक्रॉस द कोर। फिर इसके बाद में हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। हम ये देखेंगे कि क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में। तो ये तो ट्रांसफार्मर नहीं है, इस वाले की बात करेंगे जिसमें हमारे पास NP या N1 नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी साइड है, N1 भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, NP भी लिखते हैं, और NS या N2 जो है वो सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर इस ट्रांसफार्मर में ये देखें कि वोल्टेज कितना इंड्यूस होता है,
क्योंकि हमारे पास फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन ये कहता है कि ई एम एफ इज़ इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, यानी किसी कॉयल में जो ई एम एफ प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है, दैट इज़ इक्वल टू number of turns of that coil or and multiplied by the flux that links with that coil, the changing flux that links with that coil. तो ये लिखा हुआ EMF is the turns multiplied by rate of change of flux. तो rate of change नहीं, rate of change of flux होना चाहिए. तो अब फाई का एक्सप्रेशन हमने देखा, ये लिखा हुआ है फाई मैक्स साइन ओमेगा टी. तो अगर यहाँ पर डी फाई बाई डी टी की जगह फाई मैक्स साइन ओमेगा टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एन ओमेगा फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी. और फर्दर इसको हम लिख सकते हैं, यानी आपके पास जो ये जो एक्सप्रेशन आया ये ई एम एफ. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गलत ये है कि कैपिटल ई लिखा हुआ है. तो कैपिटल ई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आर एम एस का भी मतलब होता है. फिर दोबारा यहाँ पे ई आर एम एस लिखा है. तो ई आर एम एस या कोई भी कैपिटल लेटर जो है उसका मतलब आर एम एस ही होता है. तो इसको अभी फॉर द टाइमिंग स्मॉल लेटर से मानिए. तो ये एक्सप्रेशन जो है स्मॉल लेटर और स्मॉल ई एम एफ का है. तो स्मॉल ई एम एफ इज़ इक्वल टू, और स्मॉल ई एम एफ का मतलब होता है यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू. तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिस एक्सप्रेशन में आपके पास साइन और कॉस आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को. तो ये इंस्टेंटेनियस ई एम एफ है, दैट विल बी इक्वल टू एन ओमेगा फाइन मैक्स कॉस ओमेगा टी. अच्छा, ये भी एक साइनोसॉइडल ई एम एफ है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी है. साइन ओमेगा टी आई या कॉस ओमेगा टी आई साइनोसॉइडली वेरिंग है. और कोई भी साइन वेव चाहे साइन के फॉर्म में हो, कॉस के फॉर्म में, या कोई भी फेज शिफ्ट हो, उसकी आर एम एस वैल्यू हमेशा डिवाइड बाई रूट 2 होती है. तो अब इसमें एन ओमेगा फाई मैक्स को, क्योंकि हमने ये पढ़ा था आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी देखा हमने फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी. तो ये जो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी वाले टर्म है, इसके अलावा जो टर्म्स बच रहे हैं हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को. तो ये एन ओमेगा फाई मैक्स हो जाएगा ई मैक्स, यानी ई एम एफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एन ओमेगा फाई मैक्स. और वो प्लॉट करके भी पता चल जाएगा. अगर आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको एन ओमेगा फाई मैक्स मिलेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस एन ओमेगा फाई मैक्स मिलेगी. कॉस का कर्व अगर आप बनाएंगे तो उसमें ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देंगे. तो मैक्सिमम वैल्यू में पता चल गई. अगर आर एम एस निकालना है तो हम मैक्स बाई रूट 2 करते हैं. तो एन ओमेगा फाई मैक्स बाई रूट 2 कर दीजिए, ये आर एम एस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ मिलेगा. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी. फिर और इसको आप जो है यानी सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख सकते हैं. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ हर्ट्स में है. तो एफ की वैल्यू जो है ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ. 2 पाई एफ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ डिवाइड बाई रूट 2 इंटू एन इंटू फाई मैक्स. 2 पाई बाई रूट 2 हो जाएगी 4.44 एफ एन मैक्स. तो ये वैल्यू आ गई आर एम एस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ई एम एफ. अब फिर मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि इंडक्शन जो है ना वो दो जगह हो रहा है. वी पी जो है ये सप्लाई वोल्टेज है. सप्लाई वोल्टेज की वजह से जो फ्लक्स इस्टेब्लिश हुआ कोर के अंदर में, इस इस्टेब्लिश्ड फ्लक्स की वजह से, जो कि वेरिंग फ्लक्स है, इसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है. यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है चेंजिंग फ्लक्स की वजह से. दूसरा वोल्टेज इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में खुद, क्योंकि ये फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल जनरेट कर रही है वो उसी प्राइमरी कॉइल से जो इसको जनरेट करा रही है फिर लिंक कर रही है चेंजिंग फ्लक्स. तो इस ये चीज़, ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस की. तो इसकी वजह से फिर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा प्राइमरी साइड में भी. तो दो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं. एक प्राइमरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसको हम E1 या E1 लिखते हैं, और दूसरी सेकेंडरी साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको E2 लिख देते हैं. तो इसको हम यहाँ पे शो करते हैं. देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इसमें V1 सप्लाई वोल्टेज है, E1 इंड्यूस्ड वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग्स में. इसी तरीके से E2 इंड्यूस्ड वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, और V2 जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग्स का. यानी E2 जो है वो वोल्टेज जनरेट हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग्स में. उसके बाद अगर आप टर्मिनल्स पे आ जाएं तो जो वोल्टेज, अगर आप यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के देखेंगे तो वो वोल्टेज V2 कहलाता है. और आइडियल केस में E2 V2 बराबर होंगे. तो अगर प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है E1, उसकी आरएमएस वैल्यू की बात करें, ये लिखा हुआ है ई आर एम एस प्राइमरी साइड, ये हो जाएगी. अब ये एक्सप्रेशन है 4.44, जो प्रीवियस एक्सप्रेशन हमने निकाला है वो है 4.44 एफ एन फाई मैक्स. तो ये एन जो है ये डिसाइड करेगा कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एफ तो फिक्स है, ये डिपेंड करेगा जो फ्रीक्वेंसी हमने
करंट की दे रखी है प्राइमरी साइड में, और फाई मैक्स भी फिक्स है क्योंकि आपके पास में फाई डिपेंड कर रहा है करंट पे, तो ये प्राइमरी साइड वैल्यूज़ जो है ये फिक्स हो गई। अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स में। अब प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, या NP और NS कह लीजिए आप। तो अगर प्राइमरी साइड की बात करें तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो है 4.44 F N1 सब्सिट्यूट कर दिया N की जगह फाई मैक्स, और सेकेंडरी साइड में है 4.44 F N2 फाई मैक्स। तो ये प्राइमरी साइड RMS इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये सेकेंडरी साइड RMS इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अच्छा, अगर इसकी और ये बात करें, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे फेज़र की बात करें, तो चलिए फेज़र को हम देखेंगे जब फेज़र डायग्राम प्लॉट करेंगे। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। A single phase transformer has 480 turns on the primary winding and 90 turns on the secondary winding. The maximum value of the magnetic flux density is 1.1 Tesla when by so volts 50 Hz is applied to the transformer primary winding. तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको निकालना है मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, फाई मैक्स निकालना है। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी होगी, और दी सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 की वैल्यू निकालनी है, E2 RMS निकालेंगे। तो पहले आप निकालेंगे मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर। तो मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर निकालने के लिए, क्योंकि आपको RMS इंड्यूस्ड RMS की वैल्यू पता है, यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है, 480 प्राइमरी और 90 सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो यानी इस्टेब्लिश हो रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1.1 टेस्ला है, मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। और किस पे, जब 2200 वोल्ट आपने अप्लाई कर रखा है 50 हर्ट्ज़ पे। तो इस वैल्यू को यूज़ करके पहले तो आप देखिए हमारे पास जो यानी, अच्छा ये जो वोल्ट वैल्यू है ये RMS वैल्यू है 2200 वोल्ट। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, तो जैसे मिसाल के तौर पे 220 वोल्ट दिया हुआ है AC, या 400 वोल्ट दिया हुआ है AC, तो सारी वैल्यूज़ RMS, इसका मतलब ये होता है कि RMS वैल्यू की बात हो रही है। तो अगर उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करें जो RMS का हमने निकाला था, तो उस यानी ये RMS की वैल्यू अभी यहाँ पे जो निकाल रखी है, इसको भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये 50 हर्ट्ज़ दिया हुआ है ऑलरेडी आपको। तो RMS 4.44 F N1 फाई मैक्स। अब आपको ये जो दिया हुआ है 2200 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, देखिए अप्लाई का मतलब ये है कि प्राइमरी साइड वोल्टेज है। तो पहले वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी साइड वाला। ये RMS की वैल्यू हो जाएगी 2200, और N की वैल्यू यहाँ आपके पास में दी हुई है 480, और F की वैल्यू जो है 50 दी हुई है। फाई मैक्स यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, फाई मैक्स आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने दोबारा ओरिजिनल वाला टर्म यूज़ कर लिया, प्रीवियस ये वाली यूज़ कर लिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप ये खाली ये टर्म भी यूज़ करेंगे तो भी फाई मैक्स निकल के आ जाएगा। जो सिंप्लीफाइड टर्म है उसी को यूज़ कर लीजिएगा। तो फाई मैक्स अगर आप निकालेंगे, क्योंकि ओमेगा 2πf देखिए दोबारा यहाँ पे पुट कर दिया, 2πf के फॉर्म आ गया, तो वही वाला है ये N 2πf बाई √2 फाई मैक्स, वो अल्टीमेटली जो है 4.44 मिल जाता है आपको। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ ये जो करा है इससे कन्फ्यूजन हो रही है। तो 4.44 वाला एक्सप्रेशन यूज़ करिएगा डायरेक्टली, फाई मैक्स वहाँ से निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0206 वेबर। ये वैल्यू आ गई फाई मैक्स की। इसकी ज़रूरत नहीं है मिली वेबर में लिखने की, क्योंकि फाई मैक्स को यूज़ करना पड़ेगा शायद। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर आप, क्योंकि आपको फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है 1.1 टेस्ला मैक्सिमम, और हमें पता है कि बी मैक्स, ये बी मैक्स की वैल्यू है, बी मैक्स बराबर होता है फाई मैक्स डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उससे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिए, फाई मैक्स हो जाएगा बी बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बी है, बीटा नहीं है, गलत लिख दिया है बीटा, असल में ये किसी वही रेफरेंस से उठाई थी जो मैंने रेफरेंस आपको दिखाया था, तो उसमें कुछ थोड़ी सी गलतियाँ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ये बी मैक्स की वैल्यू 1.11 है, और फाई मैक्स हमने निकाल लिया है। यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा 0.0187 मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रांसफार्मर का है। अब थर्ड क्वेश्चन है इंड्यूस्ड, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे 4.445 NS सेकेंडरी साइड, N2 या NS, एस का मतलब सेकेंडरी है। तो
ई सेकेंडरी RMS वैल्यू का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, फाई मैक्स दोनों के लिए सेम है, तो आप सेम वैल्यू डाल देंगे 0.0206। ये 10⁻³ मत यूज़ करिएगा क्योंकि फिर ये SI यूनिट गड़बड़ हो जाएगी, तो SI में रखिएगा इसे। तो अब यहाँ पे SI निकाली है उन्होंने, लेकिन यहाँ 10⁻³ से ही निकाल दिया इस चीज़ को। बहरहाल खैर 4.44 इंटू 50 हर्ट्ज ये हो गया, NS to 90 हो गया, और ये 0.0206 वेबर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 412 वोल्ट्स आपको मिल जाएगा सेकेंडरी साइड की वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, इसको निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप टर्न रेशियो से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टर्न रेशियो की वैल्यू होती है NP प्राइमरी डिवाइड बाई सेकेंडरी, या वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाई सेकेंडरी। तो इससे आप क्रॉस अगर VP/VS इक्वल टू NP/NS लिखेंगे, VP आपको पता है 2200 RMS और NS की वैल्यू 90 है, NP की वैल्यू 480 है, तो डायरेक्ट VS 412 आपको निकल के आ जाएगा टर्न रेशियो यूज़ करके। क्योंकि टर्न रेशियो भी जो है ना, इनफैक्ट पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि वो इसी रिलेशन से आता है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 4.44 F और 5 मैक्स ये दोनों में कॉमन है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा N1/N2 बच जाएगा, तो वही टर्न रेशियो कहलाता है। फिर इसी तरीके से ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में जो है हमारे पास में कुछ लॉसेस होते हैं, तो एक कहलाता है कॉपर लॉस और दूसरा होता है कोर लॉस या आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह का कोई मटेरियल कॉपर का लॉस हो रहा है, बल्कि कॉपर के अंदर, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग दे प्रोवाइड कर रखी है वो कॉपर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, तो वो सब जो यानी आप किसी अगर में जो काम करते हैं जैसे वाइंडिंग वगैरह का, तो वो दोनों तरह की वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। कॉपर की वाइंडिंग देते हैं तो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, एल्युमिनियम सस्ती होती है। तो लेकिन कोई भी वाइंडिंग हो, एल्युमिनियम की हो या कॉपर की हो या सिल्वर की हो, सिल्वर वाइंडिंग होती नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए सिल्वर क्योंकि बेस्ट कंडक्टर है, कोई प्रोवाइड करेगा सिल्वर का वाइंडिंग, इन वाइंडिंग्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल लॉसेज होंगे, I²R लॉसेज होंगे, वो कॉपर लॉस कहलाएंगे, चाहे कोई भी वाइंडिंग हो, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग हो या कॉपर की वाइंडिंग हो। तो लॉसेज जो है वो हमेशा कॉपर लॉस ही कहलाएंगे, जो I²R लॉसेज वाइंडिंग के अंदर हो रहे हैं। तो एक लॉस ये होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स होती है ना, काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी सारी वाइंडिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से उसमें लॉसेस होने लगते हैं। और दूसरा टाइप का जो लॉस होता है वो होता है लॉस इन दी मैग्नेटिक कोर। तो मैग्नेटिक कोर में किस तरह के लॉस होते हैं? दो तरह के लॉस हैं। मैंने एक तो हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में आपको बताया था जब हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था, तो लूप का साइज़, हिस्टेरेसिस लूप का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें लॉस होंगे। और दूसरा आयरन लॉस के जो कंपोनेंट्स हैं, एक हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है, दूसरा एडी करंट लॉस कहलाता है। एडी करंट जो लैमिनेशंस की बात मैंने बताई थी कि लैमिनेशंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि एडी करंट जो हैं वो यानी उस लॉसेस रिड्यूस हो जाएं एडी करंट्स के। तो बेसिकली लैमिनेशन एडी करंट लॉस को रिड्यूस कराता है, और हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपको मटेरियल ऐसा पिक करना पड़ेगा, ऐसा मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस मिनिमम हो। तो यानी जब हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल है एरिया अंडर द BH कर्व, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको ऐसा मटेरियल चूज़ करना होगा जिसका BH कर्व का एरिया कम हो, और प्लस ये है कि यानी आपकी परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो खैर वो दूसरी चीज़ है, उसको कैसा BH कर्व एग्जैक्टली होना चाहिए। फ़िलहाल इतना याद रखिए, लॉसेस रिड्यूस करने के लिए BH कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वो कम होना चाहिए, तभी आपका हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। इसका मतलब आपको मटेरियल ऐसा चूज़ करना पड़ेगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस करने के लिए मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा, एडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये दोनों लॉसेस, हिस्टेरेसिस और एडी करंट, कलेक्टिवली कहलाते हैं आयरन लॉस। तो ये आयरन लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर के अलावा। तो इससे क्या होता है, जब लॉसेस होने लगते हैं तो एफिशिएंसी 100% नहीं मिलती। तो क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है आउटपुट अपॉन इनपुट, परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। अब आउटपुट पावर क्या होती है? इनपुट माइनस लॉसेस, कि जो आपने इनपुट दिया उसमें लॉसेस घटा दीजिए तो आउटपुट मिल जाता है। तो इनपुट पावर माइनस लॉसेस, तो ये हो गया 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से फिर दूसरी जो मेन एक्सप्रेशन है वो ये है, वेयर इनपुट आउटपुट एंड लॉसेज आर ऑल एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ पावर। ये सब पावर के टर्म्स में, एफिशिएंसी पावर की बात होती है ना, पावर कितना आप इनपुट आउटपुट में हो रहा है।
जनरली वन डीलिंग विद ट्रांसफार्मर्स द प्राइमरी वॉट्स आर कॉल्ड वोल्ट एम्पियर्स। ट्रांसफर देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जब मोटर जनरेटर की बात करते हैं तो वहाँ आप वॉटेज की बात करते हैं, इतने वॉट का मोटर, इतने किलो वॉट का, इतना मेगा वॉट का मोटर है, ये जनरेटर है। लेकिन जब आप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हमेशा वी ए, के वी ए, एम वी ए, इस तरह से बात करते हैं। तो दिस इज़ डन टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द सेकेंडरी वॉट्स। देन द एफिशिएंसी इक्वेशन अबाउ कैन बी मॉडिफाइड। ये जो एफिशिएंसी इक्वेशन है ये, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया, इसको भी सही करते हैं, रुकिए। तो जो एफिशिएंसी इक्वेशन है, इनपुट माइनस लॉस अपॉन इनपुट पावर है, तो ये आप लिख सकते हैं एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वॉट्स डिवाइड बाई प्राइमरी वी ए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको अभी फ़िलहाल जो है ये इसको हटा देते हैं, या चलिए इसको रखिए। इसकी ज़रूरत वैसे आपको पड़ेगी नहीं, अभी वी ए के टर्म्स में ही बात करेंगे।